चलिए बेटा एक्सरसाइज 6.4 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टेल मी द क्वेश्चन जो आपको नहीं आया। पहले 3 मेरे को लगता है मैंने कल यहीं दिखाए थे। तीसरा आपने कहा था खुद करना। तीसरा खुद करना। व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन? शाबाश। ट्रेपेजियम ABCD। क्वेश्चन नंबर 3 वो किया। तुमने किया? चलो ठीक। ट्रेपेजियम हाँ ABCD। ABCD ABC and ABC are two triangles. ABC and DBC and DBC. Okay, ये are two triangles on the same base BC. on the same base BC. ABC हाँ exactly. If AD intersects BC at O. If AD intersects BC. Okay, इसमें ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। इसमें बस B C या कोई D या कोई B नीचे है। नहीं से पढ़। ABC B है ना वो A के नीचे। ABCD is a trapezium. क्या? फिर उसके बाद ABC and DBC। डायग्राम बना के? हाँ यहाँ पे डायग्राम। फिर डायग्राम बताना क्या है? ACDB असल में ट्रायंगल वैसे कुछ नहीं। ACDB नाम है। ABCD कहाँ है इसका नाम? ACDB है इसका नाम। You should always study in order. ABCD क्या हो? Okay, ACDB is actually a trapezium. हाँ. In which? Triangle ABC. Triangle ABC and DBC. हाँ DBC हाँ all on the same base. BC. Exactly yes. If AD intersects BC at O. If AD intersects BC at O हाँ आपसे यार है. Show that ratio of area of triangle ABC by area of triangle DBC is equal to AO by DO. AO by DO. Now बेटा given देखो क्या है पहले इसमें. A trapezium ABDC फिर है या है ACDB. ACDB ठीक है. Diagonals cos AD and BC intersect at O. ठीक है. And then we have to find to prove है इसका ना. हाँ क्या? Area of triangle ABC. Area of triangle ABC by area of triangle DBC. Area of triangle DBC is equal to AO by DO. is equal to AO by DO. DO. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं क्योंकि एरिया निकालना है उसके लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो we'll go for the construction. The construction is this. Draw AM and DN perpendiculars. ठीक है. Draw AM and DN perpendicular on हाँ BC. ठीक है. दोनों BC पे ही है. अब देखिए बेटा इससे क्या फायदा है. जरा ये ट्रायंगल देखो. प्रूफ. इन ट्रायंगल AOM, इन ट्रायंगल या AMO and DNO. ठीक है ना. Angle M is equal to angle N, each 90, and angle 1 is equal to angle 2, vertically opposite. Therefore by AA corollary क्या? Triangle AMO is similar to triangle DNO. ठीक है. पर अगर ये है then which implies AO by DO is equal to AM by DN is equal to MO by NO. कोई प्रॉब्लम नहीं. क्यों? These are corresponding parts of similar triangles and हमने पढ़ा they are proportional. ठीक है. चलिए बेटा. Now अब हमें क्या लेना है? Area of triangle. Now area of triangle
ABC, area of triangle ABC divided by area of triangle DBC DBC is equal to half of, जरा ABC का एरिया बता, ABC half of base into all into AM, हाँ half of BC into AM divided by, ये half of BC into D into DN, cancel, कितना आ रहा है AM by D AM by, DN but you have proven that from first AM by DN क्या है, AO by DO that is equal to AO by DO using first, क्या clear था, hence rule आसान है, next बाकी next बेकुछ तो ना, चौथा क्वेश्चन आएगा, हाँ वो किया similar triangles है, you have to prove them congruent, good था, next fifth किया, fifth आसान भी है लड़के, 6 or 7 sixth और seventh, fifth किया, okay चलिए sixth, question number 6, चल बता क्या, Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. corresponding median, say for example बेटा we have got two triangles ABC and triangle DEF, ठीक है, क्वेश्चन बता रहा है, गिवन में ये कह रहा है कि ABC is similar to triangle DEF, ठीक है, सपोज बेटा इसकी मीडियन है M और ये इसकी मीडियन है N, तो मीडियंस जो है, the issue upon ratio of areas, these are AM and DN are their medians, क्या, ठीक है ना, now बेटा we have to prove that, to prove क्या, The ratio of their areas area of triangle ABC, area of triangle ABC divided by area of triangle DEF, DE yes. is equal to, शाबाश, Square of the हाँ, ratio square of the ratio of their corresponding medians, medians. यानी कि AM by DN by DN square. whole square. We have already studied a theorem based on the ratio of the areas that it is equal to the ratio, square of the ratio of the corresponding sides. वही पढ़ा, हाँ हमें medians को prove करना है, कुछ मसला नहीं है, देख, proof. In triangle ABM, AB and triangle DEN, ठीक है, तशवा गुबुर सारनी इमा अख चीज आती दैट ये सारा बाय ये सारा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ AB, या पहले मैं अलग से यहाँ पे गिवन अगर अच्छू ट्रायंगल्स दो सिमिलर है, चल चुनाव से अख चीज थी दैट इज, हाँ ये देखिए है ना, AB वहां से क्या लिखेंगे, D शाबाश, इज इक्वल टू BC हाँ by EF बाय EF, सुना, AC by DF AC बाय, DF और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर है, अच्छा बेटा अब समझना, AM से मीडियन दिलचा M मिड पॉइंट, ये इसके बराबर है, और N भी होगा मिड पॉइंट, ये इसके बराबर होगा, अब देख ले, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN हम ये यूज कर रहे हैं, क्या, AB by DE is equal to BC by EF, अच्छा ठीक, which implies, अच्छा देखना मैं लिखूंगा AB by DE, AB by D is equal BC by EF, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ twice BM by twice EN, है क्या लिखिए, 2 and 2 will, which implies AB by DE, AB by is equal to BM by EN,
ठीक है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देयरफॉर क्या बाय ऐसे शाबाश SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। हाँ, triangle ABM is similar to triangle DEN। अगर सिमिलर है, अगर सिमिलर तो ratio of their corresponding sides should be same, so which implies AB by DE is equal to AM by DN is equal to BM by EN। ठीक है, वो समझ आ गया? Call this first। ठीक, now इनसे ट्रायंगल से सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर, रेशियो ऑफ एरियाज किसके बराबर होता है? square of the ratio of the शाबाश। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC AB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, पूरा ट्रायंगल, ठीक है, इट इज इक्वल टू, बिकॉज दे आर सिमिलर, इट इज इक्वल टू AB by DE होल स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी क्या, when two similar triangles are there, the ratio of their areas is equal to square of the ratio of their corresponding sides। but AB by DE के बदले क्या लिख सकते हो? AM by DN शाबाश, AM by DN whole square। DN होल स्क्वायर तो वही रहेगा ना। go hence rule using first। ठीक है, Yes, sir. अक्सर जी नेक्स्ट कौन सा सवाल था? 7th। Prove that the area of an equilateral triangle बताओ बेटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। आंसर जो prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half the area of equilateral triangle described on one of its diagonals। ओके, देखो बेटा क्या है सवाल। दबांग स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? उसके सब साइड्स Equal सेम होते हैं। से फॉर एग्जांपल बेटा इसका साइड है A, इसका साइड है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये वाला साइड भी A होगा। ऐसे कितना? let the square be say A, B, C and D। now the question says that the two triangles are there, one triangle is better formed on another sides, मगर equilateral triangle, whose triangle? Equilateral। समझ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब अगर इशू ए सुना दिलचस्प जिगर में और ये होगा कि नहीं? एट द सेम टाइम लेट दिस बी DE, ठीक, एट द सेम टाइम बेटा अगर इसकी डायगोनल है कोई भी डायगोनल से, फॉर ये डायगोनल है AC, तो AC का वैल्यू जो है तो उस पे भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड AC। क्या? चलिए बताइए पहले बेटा गिवन क्या है? गिवन क्या है? Equilateral triangle। A square ABCD, हाँ, square ABCD which side? A DEC sorry is an triangle equilateral triangle, on its side। equilateral triangle, ठीक है, on DC, ठीक, and another triangle बेटा, say for example ये है triangle, ठीक है, AQC, ठीक है, and AQC is an equilateral triangle on AC। अच्छा, अब ये इस वाले का साइड तो सबका साइड A है, लेकिन इस वाले का साइड देखना पड़ेगा क्योंकि पहले AC देखना पड़ेगा कितना। अच्छा, ओके, टू प्रूव area of triangle
equilateral triangle DEC एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल DEC is equal to half the area of DEC, हाँ, it is equal to half of the area of the equilateral triangle AQC. ठीक है, ये प्रूव करना है। पाक से जगह प्रूफ देखते हैं। प्रूफ चलिए बेटा, पहले ये सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं इस वाले का साइड कितना है। ठीक है, तो बताइए बेटा, इन ट्राइंगल ADC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना? क्या? A square AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर पढ़ा तो हमने, विच इम्प्लाइज AD को तो जुगाड़ A स्क्वायर प्लस DC कितना A स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ट्वाइस A स्क्वायर इज इक्वल टू AC square, which implies AC is equal to A root 2. अच्छा, स्क्वायर रूट से अप्लाई 2 का हो गया रूट 2, A स्क्वायर को हो गया 8। ठीक, चलिए निकल गया। तो इसका मतलब ये वाले साइड्स क्या है? A रूट 2। अच्छा, चलिए बेटा, नाउ ट्रायंगल दोनों DEC एंड ट्रायंगल AQC हाँ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। अच्छा, और हमने पढ़ा है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, क्योंकि सब एंगल्स 60 होते हैं। आप में साइड विजुअल प्रोपोर्शनल भी होंगे फिर खुद ही, क्योंकि देखो इसका A है, इसका A रूट 2 है, तो रेशियो आएगा कुछ। तो चलिए, आर इक्वल विच इंप्लाइज ट्रायंगल DEC is similar to triangle AQC by AAA criterion, by AA corollary, by SSS similarity का हर साइड से। ठीक है, तो अगर सिमिलर है तो रेशियो ऑफ एरियाज क्या आएगा? हाँ, therefore triangle area of triangle DEC divided by area of triangle AQC, ठीक है, is equal to ratio of their sides। उसका साइड है A, लेकिन उसका क्या है? A रूट 2, उसी का स्क्वायर। अरे कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें सब सेम है ना, इसी चीज का था। तो बता क्या होगा? तो बता क्या निकला? इज इक्वल टू 1/2 निकला ना? तो बस हो गया, which implies area of triangle DEC is equal to half of area of triangle AQC। तो ना समझ? आसान है। और से दिगर नेक्स्ट, देयर आर मल्टीपल चॉइस। क्या लाइक ना करें? कुछ नहीं, खास नहीं है। चलिए ऐसे 6.5 पे आइए बेटा। 6.5 से लास्ट एक्सरसाइज ट्रायंगल्स 6.5 करते हैं बेटा, because we have already studied the prerequisites। ठीक है, शावर ट्रायंगल्स आसान, इसमें कुछ नहीं करना है, बस वही थ्योरम इस्तेमाल होगी, और बस ये है कि आपको ऑर्डर दिमाग में होना चाहिए। जितनी ज्यादा आपको कॉपीज बनाओ, खुद से करोगे तो याद रहेगा हमने क्या किया। चलिए बेटा, लास्ट एक्सरसाइज फॉर ट्रायंगल 6.5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए फर्स्ट से ही स्टार्ट करें। क्या शुभना? Sides of a triangle are given below. Determine which of them are right triangles. In case of a right triangle, write the length of its hypotenuse. Hypotenuse, okay. चलिए बेटा, क्या चॉइस? क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 7 centimeter, 24 centimeter, 24 and सेंटीमीटर 25 centimeter. 25। अगर कोई राइट एंगल होता है तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम में क्या? तो hypotenuse छोटे दो का स्क्वायर होता है बराबर बड़े के स्क्वायर होता है। चलो देखते हैं, जरा इसका स्क्वायर करो, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर
देखते हैं वो कितना आएगा 49 प्लस हाँ व्हाट अबाउट दिस 24 176 आई थिंक सो नहीं 170 नहीं 4 576 तो देखो 576 वही आता है तो आएगा 625 आएगा ना हाँ तो 625 तो लेकिन लिख सकते हैं 25 स्क्वायर है को ना लिखे which implies 7 square plus 24 square is equal to 20 square therefore 7 24 25 is a Pythagorean triplet and therefore जो ट्रायंगल इससे बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा एंड उसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा 25 सेंटीमीटर ठीक है देखने का पहले देख रहे हैं आएगा कि नहीं आ रहा है तो सही आ रहा है नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा वो पहला क्वेश्चन फजूल है क्वेश्चन नंबर 2 दिस वन मक्खन क्वेश्चन PQR is a triangle right angled at P. PQR is a triangle right angled at P. okay And M is a point on QR QR such that PM is perpendicular on QR. okay बेटा ये है क्वेश्चन हमने किया है असली हाँ Show that PM square is equal to QM into MR. PM square is equal to QM into MR MR. हमने किया है ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमने जब हमने वो प्रूव की हम कहीं ना कहीं पर हमने ये चीज निकाली देखते हैं यू ऑलरेडी नो थ्योरम पढ़ी है when a perpendicular is drawn from this vertex to this side then these two triangles are similar पढ़ा है ना गिवन तो गिनता है लेकिन सॉल्यूशन देख लो बेटा डायरेक्ट triangle since PM is perpendicular on QR from vertex P ठीक है which implies triangle couscous PMQ and triangle कौन PMR. ना ओ इम्पोर्टेंट है PMQ. ट्राइंगल PMQ बड़ा वाला क्या है क्या मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल कैसे लिखा जाएगा देखो M और Q उसमें M की जगह है P है ना QR. Q की जगह है वहां पे P सॉरी Q क्या शुरुआत लेफ्ट साइड से मैं कौन सा ले रहा हूँ Q तो कॉमन ही है ना M की जगह है P और ये और वहां क्या बचा हाँ R बचा ये बचा देखो छोटा ट्राइंगल मैंने कौन सा लिया PMQ ना तो बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा लेंगे M की जगह वहां पे है P M की जगह वहां पर P Q तो कॉमन ही है वहां बच गया R उसका तो ये वाला ट्राइंगल इनसे पान सिमिलर एंड हमने ये भी पढ़ा है कि ये वाला ट्राइंगल भी बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर होता है ये वाला क्या मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल PMR PM ये वाला ये भी बड़े वाले को सिमिलर है ना एंड ट्राइंगल ना असमा एक हो RPQ समझना आराम से इसमें लिया हमने छोटे वाले में M बीच में 90 तो इसमें बीच में क्या लेंगे इसमें P लेंगे इसमें हमने R लिया एंड पे क्योंकि R कॉमन है तो R पे ही आएगा ना समझ तो रहा आज क्या बचोगा कुछ क्या समझ तो रहा ओके बेटा तो अगर इसका मैं ऑर्डर RPQ ही लिखूंगा विच इंप्लाइज ट्राइंगल यहां से मैं लिखूं ट्राइंगल पहले वो क्या लिखूं RPQ शो लिखूं RPQ चल क्या ही अपना हाँ RMP तो ना समझ वो समझ आ गया इसलिए मैं कह रहा था तो दिस इज फर्स्ट जो चीज हमें पता है और दूसरी चीज हमें ये पता चल गई तो इन दो चीजों से ये समझ आ गया कि ये दो आपस में सिमिलर तो कौन सा सिमिलर है देख खुद ही RPQ हाँ PMQ मच PMR RMP है या समझ तो रहा एनीवन में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट हाँ क्या लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल PMQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RMP नाउ बेटा अगर ये सिमिलर है अब देखने के बगैर तो साइड्स लिख सकता है बता क्या साइड लिखेंगे PM by
हाँ इज इक्वल टू MQ by MP. एम, चलो पहले पी क्यू लिखते हैं, बाई आर पी, RP. हाँ हाँ. इज इक्वल टू एम क्यू by बाई MP. एम क्यू बाई एम पी, है ना ठीक। तो मुझे लग रहा है ये और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, विच एम्प्लाइज हाँ एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू MQ एम क्यू into R. इंटू आर, यही प्रूव करना था। मेहरबानी करके ये ना मैंने परसों कहा आपको ये वाला ट्रायंगल इसको सिमिलर है, लेकिन ऑर्डर देखो इसका बेटा। लिखना हुआ डायरेक्ट विच क्या लिखना लिखा वही पीएम क्यू पीएम आर, इतने रहना साइड तालुक पेट। साइड्स को सही लिखने के लिए एक बार दो लाइनें अलावा लिखनी है हमेशा में, क्या पीएम क्यू और फिर बड़ा वाला, और फिर अगर आप पीएम आर लिख रहे हो तो बड़ा वाला, बड़े वाले का ऑर्डर सही कर दो, आपको छोटे वाले का जो ऑर्डर मिल रहा है वही दो सिमिलर है, तो वो याद रखा, तब जाकर आप इस थ्योरम से इस्तेमाल कर सकते। क्लियर? पाक जी कर नेक्स्ट। कितने हो गए? 2 हो गए। चलो बताओ अगला। triangle ABD, right angle at इसमें यही सब चीज है भाई, सेम क्वेश्चन। हाँ, आज मुझे ट्रायंगल बनाई देखिए ये फिर हाँ मदद है ऐसे, मगर ये वाला ए है ना यहाँ पे right angle. बी तो डी है ना, तो क्या करा तुला की तालुक पे बंद था वो किधर पर, फिर आपको यही चीज हो आएगी। असमें जो 3 पार्ट तिम 93 का इथे इम्प्रूव पाक से नेक्स्ट। ABC is an isosceles triangle, right angled at C. Prove that AB square is equal to 2x AC square. ओके दबा ए बी क्या जरा बताओ। Isosceles triangle. राइट एंगल दैट C. ए बी सी जा, हाँ. तो ये तो चीज पर ये है सी राइट एंगल, तो ये ऐसे ए बी सी बना, हाँ. ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल दैट C. हाँ, Isosceles. और साइड्स कौन सी बराबर नहीं, और बोला कि AB square is equal to prove AB square is equal to 2x AC square. ये बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल आंसर हाँ. क्या इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अच्छा राइट एंगल, तो अगर आइसोसेलेस है बेटा तो इसके दो साइड्स Equal to base और perpendicular. क्वेश्चन नंबर 4 शक्ति 4। नाउ एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस होगा तो बेटा ये वाला साइड, किसकी equal? तो अगर साइड्स एंगल्स भी बराबर होंगे, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करता, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट AB square AB square is equal to 2x AC square. is equal to twice AC square। ओके चलिए यहाँ तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेट द परपेंडिकुलर बी से M, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इन दो में क्या क्या मसले होंगे, शाबाश। Similar. इनसे ट्रायंगल में भी सिमिलर, हाँ. अगर सिमिलर है तो इनका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। अगर रेशियो सेम आएगा तो हम साइड्स का लिखते हैं, देयरफॉर आइसोसेलेस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कुछ ट्रायंगल पहले समझना, इसका ए इसके बी को बराबर है, और इसका एम इसके एम को बराबर है, CM CBM. सी एम A CMB. ना सी दोनों में कॉमन है, उससे क्या क्वेश्चन था, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल लेट सी, ठीक, मगर साइड्स कौन से, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। अच्छा ये तो आसान है यार, इसमें परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करना है, ये क्यों ड्रॉ करना है, यार ये सोल्व पाइथागोरस थ्योरम यही देखे है ना। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है पॉइंट सी पे, चल चाहिए याद बराबर यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस लिखना गिवन तो आएगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है तो क्या सम बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पढ़ा तो है, मगर AC ना BC बराबर सीधी बात है, तो ये AC स्क्वायर का डबल हो जाएगा AB, इसमें कुछ करना ही नहीं था, मैं पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। नेक्स्ट इसका दूसरा उल्टा है ना,
हाँ दबांशी ABC is an isosceles triangle with AC AC equal to BC. अब इसने बोला वहीं से AC is equal to BC. if AB square is equal to twice AC square that तो पहले ये लिखोगे ना, हाँ. फिर अगला स्टेप ये होगा ना, हम्म. तो तीसरे स्टेप में आप बोलोगे but it forms a Pythagorean triplet and therefore it is right angled at C, therefore it's a right angled triangle. इसी converse. अगला बेटा ABC is an equilateral triangle of side 2A. Fine. Find each of its altitude. आएगा निकालना altitude. Question मतलब number? हर वर्टेक्स से इसका altitude. हाँ, एक ही निकालोगे सब सेम है ना, फिर इक्विलेटरल. Question number 6. Question number 6. हाँ बताओ ABC क्या होना? ABC is an equilateral triangle of side 2A. 2A. Okay बेटा. ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड क्या है 2A. ये डैश 2A थे. now इक्विलेटरल ट्रायंगल में बेटा याद रखना है एक चीज, जो इसका अल्टीट्यूड होता है वो इसका मीडियन भी होता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज A B दिस C. बस मानो ये M, फिर ऐसे गोबर ये A, ये टैस A. ठीक है, अब क्या निकालना अल्टीट्यूड. एक निकालेंगे तो सब निकल जाएंगे. अल्टीट्यूड क्या है AM, चल ना राइट एंगल ये तो क्या कर रहा है. therefore in right angle triangle AMB ठीक है, मुझे लग रहा है AB स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ MB स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर. ये है ना, AB कितना 2A होगा, 2A होल स्क्वायर इज इक्वल टू MB कितना A स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. हमें नहीं पता ना, which implies वो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर. तो होगा 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर, which implies बेटा AM इज इक्वल टू हाँ रूट 3A. मगर साइड इसका 2A था तब जाकर यह है, अदरवाइज यह रूट 3A/2 अगर साइड A है. नेक्स्ट. ओहो हो क्या तो तूफान इस फिगर से. अच्छा नहीं अगला पहले. प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. आएगा करना. रोम्बस में क्या होता है पता है? Diagonals are perpendicular bisectors. They are perpendicular bisectors. So that the sum of the squares of the sides of the rhombus is equal to the sum of the square of its diagonals. चलो ये वाला भी दिखाता हूँ मैं. हाँ. So that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares. बोला करो. वो भी पाइथागोरस थ्योरम से करना है ना. नहीं देखते हैं क्या करेंगे. हाँ एट द एंड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम निकालो तो मगर चलो पहले मैं करता हूँ. निकालेंगे हम दो ट्रायंगल्स को. देखो क्या करेंगे. ओके रोम्बस फॉर एग्जांपल बेटा ये रोम्बस है. क्वेश्चन नंबर 7. या रोम्बस की बात करें तो सपोज ये रोम्बस है. तो रोम्बस में एक प्रॉपर्टी है क्या, लेट ABCBD हाँ दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. ठीक है, ठीक है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब DO जो बराबर BOS तो AOS बराबर OCS और यहाँ पे सब एंगल्स 90. ठीक है, ठीक है ना. पहले समझो. और सब साइड्स भी इसके बराबर होते हैं. रोम्बस इसके सब साइड्स भी क्या होते हैं. चलिए गिवन ABCD इज अ रोम्बस. हाँ, which implies मैं ये कह सकता हूँ AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA है ना. now to prove क्या प्रमाण
The sum of the square of the sides of rhombus. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, Hmm. साइड्स का स्क्वायर का सम हाँ. वो प्रूव ये करना है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल टू The sum of the square of its diagonals. सो द स्क्वायर ऑफ इट डायगोनल्स, के डायगोनल्स क्या है, AC ए सी उसका स्क्वायर प्लस बी डी उसका स्क्वायर, ये प्रूव करना है, समझ गए? क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स इक्वल सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, Diagonals. ये दो ऐड करके आगे से बराबर, देखो क्या करेंगे। चला प्रूफ विच गोबुल, जरा ये ले डीओसी इन ट्रायंगल डीओसी, इज राइट एंगल एट ओ Hmm. है ना, हाँ. विच इम्प्लाइज मैं ये कह सकता हूँ डी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी OC स्क्वायर square इज इक्वल टू डी सी DC स्क्वायर। square. आज much का प्रॉब्लम, No. much a problem, No. but do मैं बोलूँ it is half of db, Hmm. half of db इस साइड का स्क्वायर, Hmm. क्यों? इसका half है ना equal. मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे do is equal to ob and AO ना क्या OC, हाँ हाँ AO is equal to OC is equal to OA, ठीक है, ये जैसा बराबर एंड देयर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो DO के बदले में लिख रहा हूँ, DO के बदले में लिख रहा हूँ DO जी नेसब ठेबुक DB, तो मैंने कहा हाफ ऑफ DB होल स्क्वायर प्लस half of OC क्यों ली लिखने थे, half of AC square. शाबाश, हाफ ऑफ AC होल स्क्वायर, है ना, ठीक, Hmm. इज इक्वल टू DC, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ DC स्क्वायर, ठीक, का स्क्वायरिंग करें यहाँ पे 1/4 dB. शाबाश, which implies DB स्क्वायर by 4 है ना, Hmm. प्लस AC स्क्वायर by 4 इज इक्वल टू DC square. DC स्क्वायर, ठीक है, which implies DB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स DC स्क्वायर, square. अच्छा, Hmm. 4 टाइम्स DC स्क्वायर को मैं लिखूं DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, हाँ. लेकिन वो DC वो different के बाद. कभी BC है, कभी AB है, कभी DA है, हाँ. तो 4 बार ये लिखने के बजाय मैं वो इंडिविजुअली वो 4 लिखूंगा, Hmm. उन्हीं का स्क्वायर लिखूं, तो देखा वो यार इस पर, इसके बदले 4 टाइम्स के बदले AB उसका Plus स्क्वायर प्लस BC BC का स्क्वायर प्लस CD CD का स्क्वायर plus प्लस DA. DA का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस Plus AC स्क्वायर, समझ तो रहा, Yes. क्लियर छा, Hmm. हेंस प्रूफ। अगला बताओ, In triangle ABC. वो तागन तो यू क्वेश्चन क्लियर सर, इन क्वेश्चन नंबर 8. डायग्राम बता दे, In triangle ABC, ट्रायंगल टू ABC, O is a point in the interior of triangle such that OD is perpendicular on BC. OD is perpendicular on BC. And OE is perpendicular on AC. OE E perpendicular on AC. हाँ, And OF perpendicular on AB. OF perpendicular on AB. okay, Show that. show that, पहला पार्ट इसका. ये गिवन आएगा लिखना आपको, शो हाँ. करना है, शो में लिख रहा हूँ, OA square. OA स्क्वायर यानी कि वी हैव टू जॉइन दैट, OA स्क्वायर ये वाला, Plus हाँ, OB square. अच्छा ये भी फिर जॉइन करना है, Plus OC square. तो ये भी जॉइन करना है, चलिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, हाँ, Minus OD square. माइनस OD square. OD स्क्वायर, Minus OE square. अच्छा, Minus OF square. Is equal to AF square. अफूल कपूरी जो, अच्छा इज इक्वल टू AF स्क्वायर Plus DD square. प्लस, DD square. हाँ, Plus CE square. प्लस, CE square. अच्छा
प्लस सी स्क्वायर बी सेकंड पार्ट है ये रुके है ये तरफ जूट ओ ओ ए कहाँ पे है वो। ये हाँ और क्या चाहिए वहां से ए एफ यानी कि ये वाला हिस्सा ओ एफ दिशा कौन जाए हाँ एग्जैक्टली तो बेटा इस ट्रायंगल की बात हो रही है ठीक है ठीक है चलिए इसका प्रूफ देखते हैं फिर दूसरा देखते हैं हम प्यार में प्रूफ इन ट्रायंगल एओएफ इन ट्रायंगल राइट एंगल ना एएफओ लिखता हूँ एएफओ राइट एंगल एफ शुना तला वन तिल पाइथागोरस थ्योरम क्या बनाया था एओ स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ इज इक्वल टू किसके बराबर है ओएफ स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर शाबाश प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हाँ ए एफ स्क्वायर ठीक है तो हाँ ये मुझे राइट साइड से रखना पड़ेगा हाँ ऐसे लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ये लिखा कॉल दिस फर्स्ट कोई मसला पाक से जगह दई इन ट्रायंगल ओ ए आ गया ओ बी हमें ओ बी भी चाहिए लेकिन वहां से चाहिए बी डी तो ये वाला चीज चाहिए इन ट्रायंगल बी सिमिलरली इन ट्रायंगल बीओडी हाँ बी डी ओ वन थर्ड कर दे हाँ बी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू शाबाश ओडी प्लस बी है ना ओडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर ये क्लियर है तो यहाँ से मुझे बेटा ओ बी स्क्वायर लिख रहा हूँ और माइनस लिख रहा हूँ ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर ठीक है कॉल दिस सेकंड तीसरे में भी एक करना है तीसरा अब कौन सा लगेगा मुझे सीई वो मुझे ओ सी तो ये ट्रायंगल ए लेकिन मुझे चाहिए ओ ई भी ये तो ये वाला ट्रायंगल चाहिए समझ गए तो बताओ इन ट्रायंगल सीईओ सी ई ओ हाँ शाबाश सी स्क्वायर सी स्क्वायर ना ओ सी स्क्वायर इसमें दो साइड इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर है ना ठीक हाँ तो मुझे वो यहाँ से रखना है तो ये वहां लेना है तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर कोई मसला नहीं है 1 2 3 एडिंग क्या फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड ये जो ऐड करा चलो तो उस चमीले ने ये है ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर ये हो गया इतना माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर हो गया इतना इज इक्वल टू राइट साइड से क्या है ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर ई सी स्क्वायर और हेंस प्रूफ ठीक है क्लियर है नेक्स्ट इस दूसरा पार्ट भी क्या था मतलब इतना हम बात थी ठीक है दूसरा पार्ट क्या जरा पहले वो बता वो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एक सेकंड दूसरा पार्ट है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हाँ। प्लस सी स्क्वायर अच्छा यहाँ से यही है हाँ इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए ई स्क्वायर अच्छा हाँ प्लस सी डी स्क्वायर अच्छा वंशी यूं प्लस ट्रायंगल बी में एफ आप जो बचे हुए ट्रायंगल्स है ना हाँ अब वो लेना है केवल वंशी यूं मैं फॉलो करूं ट्रेंड ठीक है ठीक है देखो राइट साइड पे वो इसके बराबर निकलेगा तो अगर राइट हैंड्स दोनों के सेम है फिर ऐसा ना ये थी बराबर जो लेफ्ट वाले साइड से वो इक्वेट करने हैं वही प्रूव करना है ठीक है तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन बट इसमें सब ट्रायंगल्स आपको लेने बाकी से नेक्स्ट A ladder 10 meters long leaves a window 8 meters above the ground. हाँ Find the distance of the foot of the ladder from the base of the wall. तो कौन सा मसला है 10 meter long ladder. ये मैं मिटाऊं या यहाँ बना मिटाएगा लेटर वाले क्वेश्चन को करते हैं तो आई विल स्टॉप बाकी कल जो भी पेंडिंग होगा वो कल करते हैं ठीक है ये मुझे शख्सन कॉपी दिखो लो ये है ना क्वेश्चन नंबर 9th. 10 कच लेटर दबाची कहता हूं देवारस पर से विंडो कितना ऊपर है विंडो 8 meter. 8 मीटर ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है जब तो इस पे लेटर लगाता है लेटर उसके लेटर इस पर लगा हाँ चढ़ने के लिए
तो बोल रहा है फुट ऑफ लेटर कितनी डिस्टेंस पे से वो एक्स पे है दीवार से शोध की दीवार से एंगल्स पे तो मेरे को लगता है परपेंडिकुलर होता है हाँ, लेटर की लेंथ क्या है 10 है मीटर तो अब क्या करना है 10 मीटर से लेटर हाँ 8 मीटर से दीवार है और तो कूदा दूर फुट कहाँ पे होगा लेटर तो करना क्या है एफ ओ एम मानते हैं ऐसा आएगा काम डब्ल्यू मानता है तो आपको निकालना है एफ ओ निकालना है ना एफ ओ स्क्वायर किसके बराबर होगा मुझे लग रहा है वो होगा वो 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर होगा ना तो 100 माइनस 64 कितना 100 माइनस पोजा बन से पूछा 100 माइनस 64 हाँ 100 माइनस 64 बता हाँ 36 शुना एम शुना कैलकुलेट बोला 36 से कर वो 36 तो बोला 6 स्क्वायर यानी कि which implies डिस्टेंस कितनी है क्लियर अच्छा यार तगना ही क्वेश्चन है यार गास है यार सही करेंगे कर अभी और भी ये क्वेश्चन बताए 18 है 17 है सो ऑप्शन भी है क्या मेरे जान ना ना ऑप्शनल लिखा भरोसा का है सी नहीं इसमें लिखा है ना ना दे आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उस पे तो लिखा है उन्होंने ऑप्शनल छे ना मुश्किल क्या है इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग बट यू नीड टू अप्रोच पगा मगला ट्राइंग पगा क्या अगर आपने किया होगा देन आई विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर तभी पूरा नहीं पता हमने किया होगा बट आई थिंक मैंने खुद इतने दिखाया आई विल स्टॉप हियर